बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से ढोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे, और होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा चाहे यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से ढोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से ढोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। જેને કહેવાય ને કે માતૃભાષા ગુજરાતી જેમના શ્વાસે શ્વાસમાં છે, અને સરસ્વતી દેવી જેમના જીવાગ્રે પર વસેલી છે, એવા જાણીતા સૂત્રધાર અને ગઝલકાર એવા શોભિત દેસાઈ આજે આપણા માતૃભાષા ગુજરાતી પ્રસાર મંચના જે ઓનલાઈન ક્લાસીસ છે એમાં એમને કંઈ ખાલી 2 મિનિટ એમનું શુભેચ્છા સંદેશ માટે તો સાંભળશું આપણે
વિદ્યાર્થી મિત્રો અને વાલીઓ શ્રી શોભિત દેસાઈ. વાહ વાહ. ક્લાસ ચાલુ છે. કોણ છે? ઓનલાઈન પ્રમુખજી છે. અચ્છા. વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓનલાઈન છે બધા. કેમ છો તન્ના સાહેબ, મજામાં? વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા ઓનલાઈન છે. વાહ વાહ, મને પણ આપને જોઈને બહુ જ આનંદ થાય છે. આપણે બધા ભેગા મળીને માતૃભાષાને જેટલી બને એટલી વધારે રૂપાળી બનાવવાની છે. અને આપણે તો શું બનાવવાના, આપણને નિમિત્ત બનાવીને સ્વયં વાગીશ્વરી આપણી માતૃભાષાને રૂપાળી કરે એવી આપણે વાગીશ્વરીને પ્રાર્થના કરીએ. મને 2-3 બહુ સરસ શેર યાદ આવે છે કે અજબની દેણગી એની અને સોગાત ચાલે છે, મુલાયમ ચાંદનીમાં રાતની રળિયાત ચાલે છે, અને સ્વીકારે છે કયા ભાવની હુંડી, સ્વીકારે છે કયા ભાવની હુંડી, અદ્રશ્ય રહીને કોણ, બધા ખાલી છે કોઠારો, છતાં ખૈરાત ચાલે છે. ચાલો, જય ગુજરાતી. આવજો. આજે એક મિનિટ તમારે કહેવાનું છે, જસ્ટ તમે ફીડબેક આપો સાહેબ કે આપણે અહીં આજે ઓનલાઈન ક્લાસમાં જે હવે પછી શિક્ષક બેન છે તે કેનિયામાં બેઠા છે અને તેથી હવે ક્લાસનું સંચાલન કરવાના છે. અરે વાહ. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો લગભગ જે ઇંગ્લિશ મીડિયમના છોકરાઓ છે, કોઈ ભુજમાંથી છે, કોઈ અમદાવાદમાંથી છે. અરે વાહ. 35 વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે ભણી રહ્યા છે. ખાલી વિદ્યાર્થીઓને 2 મિનિટને સંદેશ આપો. હા, વિદ્યાર્થી બધા ગુજરાતી મીડિયમ વાળા ઇંગ્લિશ મીડિયમના અને ગુજરાતી શીખે શીખે છે. છે. અરે આ તો તમને બહેનનું નામ શું? નિશાબેન. નિશાબેન, આ તો તમે બહુ સરસ અત્યારે સૂત્રધાર છો. કારણ કે આ બધા અંગ્રેજી મીડિયમવાળા બાળકો માતૃભાષાને અનહદ અઢળક પ્રેમ કરવા માટે ગુજરાતી ભાષા શીખી રહ્યા છે. આનાથી વધારે તો સુંદર કોઈ વાત ના હોય છે. અને મારા જેવા ગુજરાતી ભાષાને સંપૂર્ણ સમર્પિત એવા સેવકને માટે તો આજે આ અત્તર જાણે રૂમાલમાં ઢોળાઈ ગયું હોય ને એના જેવી વાત છે. બહુ જ આનંદ આવ્યો. આપને બધાને પરોક્ષ દર્શન કરીને બહુ જ આનંદ આવ્યો. અને આપ સર્વ રીતે જિંદગીમાં સુપ્રસિદ્ધ થાવ અને તમારી બધી જ પ્રકારની માનસિક, આર્થિક બધી જ વૃદ્ધિ થાય એવી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના. થેન્ક યુ. હવે સાથે સાથે ખૂબ જ આભાર અમિતભાઈ. અને સાથે સાથે આવી ગયા છે દીવાદાંડી કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી આલમ માટે વિદ્યાર્થી જગતની એ દીવાદાંડી છે કે વિદ્યાર્થીઓને એસએસસી એચએસસી પછી કેરિયર ગાઈડન્સ જેને કહેવાય વિસ્તૃત પરિચય તો ઘણું આપી શકાય એમનો. પણ 25 વર્ષથી આ જે છે કાઉન્સિલિંગમાં છે વિદ્યાર્થીઓને એસએસસી એચએસસી પછી કઈ લાઈન લેવાની. અને ખાસ કરીને અમે બહુ નજીકથી જોડાયેલા છીએ કચ્છીલોણા મહાજન મુંબઈના દરેક કાર્યક્રમોમાં એમનો જ અમને સાથ મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે ફરી યાદ અપાવો કે અહીંયા ઇંગ્લિશ મીડિયમના બાળકો જે માતૃભાષા ગુજરાતી છે એ લોકો અત્યારે ગુજરાતી ભાષા શીખી રહ્યા છે. આપણી શિક્ષિકા બહેનો સાથેના ઓનલાઈન બધી બહેનો છે. વારાપતિ શીખવશે, 3 બહેનો છે. વારાપતિ નિશાબેન આવશે, યામિની બેન આવશે, રક્ષાબેન આવશે. તેમને શીખવશે એમ. તો કોઈક અમદાવાદથી છે, કોઈ ભુજથી છે, મુંબઈના બી અલગ અલગ પડાવો માંડો છે. તો અને સામે આપણા પ્રમુખ શ્રી જગદીશભાઈ ચલા છે. તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રોને કે જરા તમારા આપણા બધાના એક નાનકડા સૌભાગ્ય છે કે શોભિત દેસાઈ સાહેબ પાસેથી આપણે સંદેશ મળ્યો. અને હવે 2 મિનિટ ધ્વજભાઈ પટેલ પાસેથી શબ્દ થોડો આપણો જે શુભેચ્છા સંદેશ મેળવીએ. કારણ કે આ બધા આપણે માતૃભાષા કીધું ને કે સમર્પિત છીએ બધા. શોભિતભાઈએ બહુ સરસ શબ્દો વાપર્યો કે આપણે સમર્પિત છીએ માતૃભાષાને. એવા આપણા શ્રી વરદભાઈ પટેલને સાંભળશું. શ્રી વરદભાઈ પટેલ. નમસ્તે, હરિઓમ. હા, લાલજી સાહેબનું જે એક ઇનોવેટિવ કાર્ય કહેવાય કે જે કોરોના કાળમાં બધા આખી દુનિયામાં જે બધા લોકોને તકલીફ થઈ તો એમાં જે સાધારણ કે મધ્યમ વર્ગના ફેમિલી હોય તો એ લોકોને કુટુંબ નિર્વાહ માટે જે તકલીફ થાય તો લાલજી સાહેબે એક પહેલ કરીને કે બધાને દર મહિને જે લોકો અસહાય હોય કે આર્થિક તંગી હોય તો એ લોકો માટેની એક અનાજ અને બધું જે ઘર વખરીની એક સિસ્ટમ ઊભી કરી કે દર મહિને એ લોકોને કોઈ પણ જાતના સંકોચ વગર મળતું રહે. તો એ પણ એક બહુ જ સામાજિક સારી પહેલ કહેવાય કે લોકોને મદદ કરવા માટે. અને બીજું મારું જે શિક્ષણનું ફિલ્ડ છે કે આપણે જ્યારે ભણતા ત્યારે 10મા પછી
એવું હતું કે ભાઈ વધારે ટકા હોય તો સાયન્સમાં જાય અને સાયન્સમાં એડમિશન ન મળે તો પછી કોમર્સ અને નહીં તો પછી આર્ટ્સમાં. પણ અત્યારે એટલા બધા વિકલ્પો હવે ખુલ્લા છે કે વિદ્યાર્થીઓને જે રીતે પોતાનું ભવિષ્યની સફળ કારકિર્દીનું ઘડતર કરવું હોય તો એ લોકો વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન મળે, કોઈ પણ જાતનું કન્ફ્યુઝન ન રહે અને વડીલો પોતપોતાની રીતે પોતાના વ્યવસાયમાં ડૂબેલા હોય. એટલે અત્યારના જે શૈક્ષણિક જે ટ્રેન્ડ છે વિદ્યાર્થીઓને એ બાબતની ખબર ન હોય અને વડીલોને પણ એ બાબતની, કારણ કે આખી જનરેશન ગેપ છે, એક પેઢીનો તફાવત છે. એટલે આપણે લાઇબ્રેરીમાં દરેક પ્રકારના, એટલે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી જેને 10મું પાસ કર્યું હોય, 11મું 12મું કર્યું હોય, કોલેજમાં ભણતા હોય અને ત્યાર પછી એ લોકોને આગળ કઈ લાઈન લેવી અને કારકિર્દી માર્ગદર્શન, તે બધું વિદ્યાર્થીઓને વિનામૂલ્યે માર્ગદર્શન મળે અને પોતાનું એક સફળ કારકિર્દીનું ઘડતર કરી શકે એ મારા પ્રયાસો છે. લાલજી સર પણ એમાં એ રીતે વર્ષોથી સેવા આપી રહ્યા છે અને આપ બધા આ રીતે ભવિષ્યમાં ખૂબ સફળ થાઓ એવી મારી શુભકામના. ધન્યવાદ. હું એ જ કહું છું કે જે આપણે જે કોર્સ ચલાવીએ છીએ એનું આપણું જે પાઠ્યપુસ્તક છે ચાલન ગાડી, અને ચાલન ગાડી જે છે તેનું ઉદ્ઘાટન પણ આપશ્રીના હસ્તે થયેલું હતું. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો એક ઓર વાત કે જે વાંચનનો શોખ હોવો જોઈએ, એ જે વાંચનનો શોખ માટે જે પુસ્તકાલય કહેવાય, વ્રજભાઈ પાસે જે પુસ્તકાલય છે, લાઇબ્રેરી જેને કહીએ, 5 લાખ પુસ્તકો છે. એટલે જનરલ નોલેજ કરતાં પણ કેરિયરને રિલેટેડ અલગ અલગ જે સ્ટ્રીમ છે, કોર્સિસ છે, એ રિલેટેડ 5 લાખ જેટલા પુસ્તકોનું સંગ્રહ એમની પાસે છે. એટલે કેટલું નોલેજ અને 3 જગ્યાએ લાઇબ્રેરી છે, કેટલું નોલેજેબલ પર્સન આપણી વચ્ચે છે. ખરેખર આજે આપણે અહીંયા એક જે 41મા મહિના 4થા વર્ષનું શુભારંભ થઈ રહ્યો છે રાશન કીટના, એના પ્રસંગે જે પધાર્યા છે અને યોગાનુયોગ અત્યારે જે માતૃભાષાના ઓનલાઈન વર્ગો ચાલુ રહ્યા છે એમાં પણ આપણે આજે એમનો શુભેચ્છા સંદેશ મળ્યો. ખરેખર માતૃભાષા ગુજરાતી પ્રસાર મંચ એક ક્લાસ માટે અને આનંદ ક્લાસીસ જે છે તે આ જે કાર્યક્રમો પધાર્યા છે એના માટે આભાર વ્યક્ત કરે છે. અને હવે આપણે નિશાબેન સુધી અવાજ પહોંચે છે. નિશાબેન કેનિયાથી, નિશાબેન હરિઓમ કેનિયાથી છે. નિશાબેન આ શોભિત દેસાઈ બહુ જ મોટા ગજાના સાહિત્યકાર અને આ જે છે અને આ છે વ્રજભાઈ પટેલ જે કેરિયર ગાઈડન્સ આપે બધાને. મુંબઈના બે કહેવાય ને કે સિદ્ધહસ્ત મહારથીઓ આપણી વચ્ચે છે. અને હવે તમે વિદ્યાર્થીઓને જે માર્ગદર્શન આપવાનું શરૂ કરશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો સાંભળશો નહીં, એમની પાસેથી શીખશો. નિશાબેન કોઠારી કેનિયાથી. હા, ભલે થાય. અને નિશાબેન આજની કવિતા એ મુંબઈને પૂરક હતી, કારણ કે સૂરજ એટલો તપી રહ્યો છે, અમે પસીને રેબઝેબ છીએ. એમની કવિતા સૂરજ ધીમા તપો કરાજ ભગવાન એમની પ્રાર્થના સાંભળે અને થોડી ગરમીમાં રાહત મળે. અને યામિનીબેન સુધી અવાજ જાય છે મારો? યામિનીબેન હવે નિશાબેન પછી તમે તમારી જે સંભાળજો, હું અહીંયા કાર્યક્રમમાં વ્યસ્ત હોઈશ એટલા માટે. યામિનીબેન, હા, તમે પછી રક્ષાબેન, દીપાલીબેન જેને લેવાનું છે, હું આ કાર્યક્રમમાં વ્યસ્ત હોઈશ. તમે બાકીનું જરા સંચાલન સંભાળજો યામિનીબેન. ઓકે યામિનીબેન. હા, અને હવે નિશાબેન આગળનું ચલાવશે. નિશાબેન ભલે ઓકે. हरिओम, जय श्री कृष्णा। राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन के चौथे साल के पहले महीने यानी कि 37th मंथ के जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें दाताश्रियों का तो सहयोग मिला ही है, लेकिन यहाँ जो ये जो स्थल है, स्कूल है, संजय भाई माली, स्नेहा कैटरर्स और डेकोरेटर्स के, तो उनका जो हमें जो सहयोग मिल रहा है हॉल के लिए और बाकी सब जो सुविधाएं उनकी ओर से हमें दी जाती है निष्प्रोही भाव से, वो बहुत बड़ी बात है। हम उनका ये शुक्रगुजार व्यक्त करते हैं। उनके प्रति हमें जो
अंतःकरण से शुभेच्छा व्यक्त करते हैं कि भाई ऐसा सहयोग हमें मिलता रहे। रही बात आज के प्रोग्राम की, तो आज के प्रोग्राम में जो चौथे साल की शुरुआत हो रही है, उस प्रोग्राम में आज हमारे बीच दिग्गज गजलकार, साहित्यकार, सूत्रधार वैसे शोभित देसाई और साथ में जो स्टूडेंट्स के लिए एक दिशा देने वाले वैसे हमारे भुरज भाई पटेल जो कैरियर काउंसलिंग करते हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक और आज के प्रोग्राम के साथ में जुड़ी हुई अच्छी बात कि हीरालाल भाई मरूक की जिनकी 2 दिन पहले गोल्डन एनिवर्सरी मनाई गई, तो उसके उपलक्ष्य में आज के प्रोग्राम में उनकी ओर से भी महत्तम योगदान दिया गया है। तो जो अपनी जो एनिवर्सरी है उसको ऐसे विकल्पों, उन्होंने ऐसा विकल्प चुना है, ये हमारे लिए अहोभाग्य की बात है। वैसे भी साथ में दूसरे भी डोनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे विनोद भाई पवानी हैं, हमारा केयूर भट्ट करके हैं, और डॉक्टर मोहन अग्रवाल भी आने वाले थे, मानव किरण के, और चंदन ब्रदर्स है हमारे। आज के जो छोटे मोटे, क्योंकि सबका इसमें गुजराती में बोलते हैं फूल नहीं तो फुल्ली पाकड़ी, छोटा मोटा डोनेशन मतलब रहता ही है कि हमारे ओर से 5, हमारे ओर से 10 ये राशन किट लेके। तो ऐसा एक बढ़िया प्रोग्राम आज हो रहा है, और इसमें आज 2-3 बातें और जुड़ी गई है। आप देख रहे हैं स्विंग मशीन, एक बहन की रिक्वेस्ट थी कि मुझे बहुत ज़रूर है कुछ सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, और उसके लिए सिलाई मशीन चाहिए, स्विंग मशीन चाहिए। तो हीरालाल भाई मरूक ने इमीडिएटली ये एक्सेप्ट कर लिया, और आज उनको ये भी दिख जाएगी। साथ में एक बहन ने और रिक्वेस्ट की थी कि मैं जो फुटपाथ पे रहती हूँ, तो बारिश में वो आप सर खार में रहते, वो बांद्रा से आएगी अभी, जयश्री बहन करके, तो उनके फुटपाथ पे रहने, उसके ऊपर कुछ नहीं बारिश के, तो उसके लिए उनको तालपत्री ये मानसून सेट चाहिए। तो हमारे जो डोनर हैं यहाँ से, उन्होंने वो भी स्पॉन्सर कर दिया है, वो भी यहाँ से उनको दिया जाएगा। वैसे स्टिक भी रखी गई है कि 2-3 लोगों ने बताया कि हमें चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि दिव्यांग यहाँ पे मैक्सिमम आ रहे हैं, तो स्टिक दी जाएगी। जो एक नेत्रहीन भाई है उसको भी फोल्डिंग स्टिक चाहिए, तो वो भी यहाँ रखी गई है। वो सब मानव ज्योत की ओर से, जो अपने लुटिया साहब यहाँ खड़े हैं, तो ये सब अलग अलग जगह से, सब अलग अलग डोनर्स जो रहते हैं, तो उनसे ये मिलती है, और हम एक माध्यम है, ये उनके तक पहुंचाते हैं, यानी सादी अच्छी भाषा में। और दादाजी पांडुरंग शास्त्री जी जहाँ हम पढ़े हैं, उनकी भाषा में हम पोस्टमैन की छोटी सी भूमिका निभा रहे हैं। तो बस ऐसे सहयोग सबका मिलता रहे, और हम ऐसे समाज के ऐसे लोगों के प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सके, बस ऐसी ही भगवान से प्रार्थना। धन्यवाद। हरिओम। मैं निवेदन करूँगा श्री शोभित भाई देसाई से 2 शब्द आप रखेंगे। आपकी स्पीच तो देनी है, बाद में सुनेंगे आपको, लेकिन अभी शुभेच्छा संदेश आपकी ओर से। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा नींव की ईंट का काम हो रहा है, क्योंकि समाज के कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो थोड़ा बहुत ये गुजारा करने का काम तकलीफ के साथ कर रहे हैं, और उनकी तकलीफें अपनी बनाकर ये जो आप डिस्ट्रीब्यूशन का और ये चीज़ों का जो ख्याल रखते हैं, वो मेरे हिसाब से हर एनिवर्सरी मनाने वाले को हीरालाल मरूक जैसे ही एनिवर्सरी बनानी चाहिए, हर बर्थडे ऐसी सेलिब्रेट करनी चाहिए, और हर शादी का अवसर का एक पोर्शन ये ऐसे कामों के लिए आरक्षित रहना चाहिए। तो समाज का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत बड़ी चैन की सांस ले सकेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सो लालजी भाई, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और मेरी जब भी ज़रूरत पड़े ऐसे पवित्र काम में मैं आपके लिए सदा काल हाजिर रहूँगा, ऐसा मैं एश्योरेंस देता हूँ आपको। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। और वैसे ही शुभेच्छा हम ब्रज भाई से अपेक्षा करेंगे। ब्रज भाई, आपसे आपके 2 शब्द। हरिओम। अभी मैंने वक्तव्य में बताया कि
कोरोना काल में पूरी दुनिया में इतनी तकलीफ हो गई कि जो अच्छी कमाई करते थे उनको भी तकलीफ हो रही थी, और जो मध्यम वर्गीय और जो डे टू डे काम करके अपनी दिनचर्या कर रहे थे तो उनको जो तकलीफें थी, तो ऐसी हालत में जो दिव्यांगजन है या विडो है या जो भी काम नहीं करते या नहीं मिलता होता, तो ऐसे लोगों को तो काम कोरोना काल में बंद हो गया था। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों के जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, अनाज और बाकी की ज़रूरियात की चीज़ें, तो उन लोगों को बिना संकोच की, क्योंकि हेजिटेशन होता है किसी से मांगने से, तो यह इसलिए उनको उनकी ज़रूरियात पूरी करने आपूर्ति करने के लिए बिना कहे उनको ऐसे लोगों को चुन कर उनको सामने से बुलाकर देना एक बहुत ही बड़ा मानवीय कर्तव्य है। और जो संपन्न लोग हैं उनको ऐसी दिशा में जरूर अगवानी करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि समाज के सभी लोगों को एक अच्छा संदेश जाए और सब लोग अपना अच्छी तरह से ये कर सके। धन्यवाद। और मानव सेवा के जो मसीह हैं कुलीन कांत भाई, आप 2 शब्द रखिए, 2 शब्द करें। मानव ज्योत के ट्रस्टी श्री कुलीन कांत भाई लुटिया, हमने तो वो रास्ते पे जो पगडंडी पे जो चल रहे हैं ना, वो पगडंडी जो आपने बनाई है उस पगडंडी पे चल रहे हैं कुलीन कांत भाई लुटिया। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं लालजी सर के इस सेवा यज्ञ से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ और जरूरतमंद को समय पर अनाज की सुविधा मिल रहे और अनाज के सिवा भी कोई मेडिकल सुविधा जरूर है वो देने के लिए कुछ योजना कर रहे हैं और ये खूब प्रशंसनीय है। मैं इनको अभिनंदन देता हूँ, आप सबको अच्छी शुभकामना देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हीरा भाई, आप जब यहाँ नहीं थे, आई थिंक आप वहाँ पे थे, तब मैंने आपकी ये जो गोल्डन जुबिली एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में आज का जो ये स्पॉन्सरशिप का आपने आयोजन किया है, उसके बारे में मैंने बात की थी कि हर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, हर बर्थडे सेलिब्रेशन, हर जन्म का सेलिब्रेशन, हर शादी का सेलिब्रेशन, ये सब सेलिब्रेशन में थोड़ा पोर्शन आज का जैसा ये उपक्रम है उसके लिए अनामत रहना चाहिए। तो समाज बहुत बड़ी तरक्की कर सकेगा और कोई इंसान, जैसे कि साहब ने बताया, ब्रज भाई ने, कि वो कहने में भी तकलीफ महसूस होती है, आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे हालात में आप ऑटोमेटिक सामने वाले के दिल की जो तकलीफें हैं वो आप अपने दिल पे लेकर वो तकलीफें महसूस कर सके। ऐसा दिन आए तो उजाला ही उजाला होगा और अंधेरा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ऐसी मैं ख्वाहिश भी करता हूं और ऐसी मैं आप सबको शुभेच्छा भी देता हूं। थैंक यू। तो बातें कम और काम ज्यादा जिसकी ओर से होता है, वैसे हमारे हीरालाल भाई से हम सुनेंगे 2 शब्द। हीरालाल भाई, यहाँ आप सब पधारे हुए हो और आप सबने लालजी भाई का बहुत सुना है और जो सेवा का यज्ञ करके किया हुआ है उसके अंदर हम लोग भागीदार हैं। वी आर द वन ऑफ द पार्टनर्स है। और यहाँ जो अपने पास आज पधारे हुए हैं कबीर भाई देसाई और रुद भाई पटेल और मानव सेवा के कुलीन भाई, एक ही बात पे आए हुए हैं कि ऐसा ही काम कंटिन्यूस रहे। अभी शोभित भाई देसाई ने कहा कि जन्मदिन मनाना, संवत्सरी करना और करते रहने का, तो लालजी भाई के साथ में मैंने बहुत कुछ काम किया हुआ है। आज ये किया है, 2 बरस पहले स्कूल के अंदर डोनेशन दिया था और सब बच्चे लोगों को खाना पीना खिलाया था। ऐसे ऐसे जैसे भी चांस मिलते गया, जैसे भी आइडिया मिलते गए, कभी कभी दिल के अंदर भी होता है ऐसे मुझे करने का, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता। कभी किसको लगता है कि स्कूल के अंदर ये क्या करने का। तो ये सब बातें होती रहती है और हम लोग करते रहते, जिसको जो बोलने को बोलने दो। आपका रास्ता वही है और हमारा रास्ता भी वही है, रास्ता वही और मुसाफिर वही। कौन क्या जाने कहाँ एक तारा कहाँ छुप गया मालूम रहता नहीं है। ये तारा यहाँ छुप के यहाँ आ जाता है और आप लोग के साथ में रहता है। अब बात रह गई ये सब करने के हिसाब से, लालजी भाई ने बहुत कुछ किया है। तो इस टाइम हमने सोचा, शोभित भाई, ब्रजलाल भाई, कि लालजी सर तो सबको अवार्ड देते, ये करते वो करते हैं, पर इस टाइम जो मेरे 50 बरस के संवत्सरी थी,
मैं और मेरी मिसेस ने नक्की किया, और मैं तो नक्की नहीं किया हुआ था, इतना कंफर्म नहीं था, लेकिन मेरी वाइफ ने बोला कि लालजी सर तो आप बोलते रहते हो सब कुछ, तो इस टाइम अवार्ड उनको मिलना चाहिए, तो अपने समाज में भी नाम रह जावे। तो आप सुनोगे, और ये अवार्ड मैं शोभित भाई और भरत भाई पटेल के हाथ से दिलाऊंगा जब पूरे का पूरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। मीनवाइल मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच हीरालाल भाई। मैं आप सब फोटोग्राफर्स को वहाँ से ये जो माल अनलोड हो रहा है वो सबकी, और आपका कैमरा इसके लिए घुमाने के लिए बोल रहा हूँ कि आज का ये जो फंक्शन है उसमें ये लोग का भी सबसे बड़े योगदान के साथ ही ये योगदान बैठ सकता है, क्योंकि वो वहाँ से ये वॉलंटियर्स एक के बाद एक वहाँ से जाकर विदाउट फीलिंग एनी पेन वो पूरा सामान, देखिए वो अभी वो लड़की अपनी कैपेसिटी नहीं है फिर भी वो उछल के आ रही है। तो ये सब ये चीजों के साथ ये जो दिल लगा हुआ है, ये हीरा भाई ने खुद उठा के ये थैलियां लेकर आए, तो ये सब जो सबका दिल लगा हुआ है वो मुझे लगता है कि कल जो होने वाला सवेरा है उसके लिए बहुत ही बड़ी मेरे ख्वाहिश मेरी है, ये है कि मुझे बहुत बड़ी उम्मीद दे रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हाँ, श्री हीरालाल गोल्डन जुबिली वर्ष निमित्ते તેમજ લાલજી સર આનંદ ક્લાસીસ રાશન વિતરણ ના ચોથા વર્ષના શુભારંભ પ્રસંગે સ્નેહાળ ભેટ। बहुत अच्छे सर, वाह वाह, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस वेरी नोबल डीड। आप सब ये कॉन्ग्रेचुलेशंस के हकदार है। और मैं तो वहां तक बोलता हूं कि मुझे लगता है कि अभी कोई स्टेज फंक्शन की जरूरत नहीं है, ये स्टेज फंक्शन ही हो गया। लेकिन ये जो ये किट का या ये गिफ्ट का जो स्वीकार कर रहे हैं, ये जो हमारे भाई और बहनों जो यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे जिसमें से कोई थोड़ी हैंडीकैप्ड है, किसी को आंख की तकलीफ है, किसी को पैर की तकलीफ है, वो सब इन चीजों का स्वीकार कर भी बहुत बड़ा हम सबके लिए उपलब्धियों का मैदान तैयार कर रहे हैं। सो वी आर ऑल थैंक यू वेरी मच, वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि ये सब आप स्वीकार करके हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे उपस्थित आप सभी जन को मेरा राधे राधे। मैं हनुमान जी का हनुमान चालीसा पठन करने जा रही हूँ। आप सभी भक्ति में इसे सुनने का कृपा करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय, वन रघु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साज, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए,
श्री रघुवीर हरि राय, रघुपति कीन्ह बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुम ओजस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि गोविंद कहि कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपति दीन्हा, तुम्हारे मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लियोताहि मधुर पद जान, प्रभु मोक्तिका मुख मान, जन हृदय अतिरज नाम, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब दुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सवारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई जीवन फल पावे, चारों जुग पर साप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, साधु संग के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवरी दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुरी जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाहि, जो सत पाठ बार कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, जय जय श्री राम। सीनियर पीआई श्री कांतिलाल कोथिंबीरे सर उपस्थित है, तालियों से उनका स्वागत हो जाए। ये हमारे जूनियर साथी हैं, ये प्रोग्राम के बहुत वेल विशर हैं हमारे ऐसे। तो देखिए शोभित भाई ने भी हमारी जो बोल रही है हर टाइम उनका यही रहता है। आइए अभी और हम प्रोग्राम हीरालाल भाई ने भी दिया और अभी हम प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। सर का ही राह देख रहे थे, सर बरोबर टाइम पे आ गए। दीप प्रज्वलन से ओके, 2 शब्द बोलिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब भक्ति होती है तो भजन भी होना चाहिए। जब हनुमान चालीसा का पठन हो, चाहे हम करें या से कोई और, तो आप लोग धीरे धीरे तालियों से उस भजन का मनोरंजन लीजिए। जैसे कहते हैं भक्तिमय होने से वातावरण में शुद्धि आती है, और ये तो गुरु जी का प्रोग्राम है,
जहाँ लोगों की सेवा होती है। तो सेवा में, भक्ति में ताली बजाना बहुत ही अच्छा कार्य है। और कृपा कर आप बड़े जनों से यही अनुरोध है कि जो आप लोगों ने पाँव में चप्पल जूते पहन रखे उसे प्लीज उतार दिया करिए, क्योंकि भजन के समय पादुका पहनना वर्जित है। धन्यवाद। और अभी दीप प्रज्वलन से प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे। तो हमारे जो मेहमान हैं तो उनको हम यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे कि शोभित भाई आप आइए, ब्रज भाई, साथ में हमारे सीनियर पीआई हैं हीरालाल भाई लोग, जगजीवन भाई टन्ना आप आइए, साथ में कुलीनकांत भाई लुठिया, शांतिलाल भाई, हम जो एक ही सफर के मुसाफिर हैं, आइए। हाँ, देखिए कैसा सीन है। सीनियर सर प्रज्वलित मोमबत्ती को पहले, बढ़िया बढ़िया, आप आपसे शुरू कीजिए। तालियां हो जाए आज। भाई बाद में आइए शोभित साहब, ब्रज भाई आओ। बाद में एक साथ में ग्रुप फोटो ले लेंगे। हाँ, कुलीनकांत भाई आओ। कुलीनकांत भाई आओ 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 आओ। कुलीन भाई अंदर थे, बाबा अंदर थे, थोड़ा अंदर थे भी ना। हाँ, शांतिलाल भाई से साथे करेंगे नदी। हाँ, तब तक जो दीप प्रज्वलन के साथ जो हमारा गीत रहता है, चंद्रबेन आइया। ज्योत से ज्योत जगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगा के चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। वो है प्रभु क्या बहुत सुंदर शब्दों है। शोभित भाई बात पूर्ति करो, आने गीत की बात पूर्ति के जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। राह में आए जो सबको गले से लगा लालजी सर, चलो। लालजी सर, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो मैं ये माता जी को जिन्होंने ये गीत याद किया उनको ये गीत समर्पित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत सालों के बाद, करीब 60-55 सालों के बाद ये गीत मेरे कान में आज गूंजना शुरू हो गया, और मुझे जो उसकी टूटी फूटी पंक्तियां याद थी, मैंने मेरे टूटे फूटे आवाज में आपके सामने पेश की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। 1 मिनिट उभा રહેજો। हाँ जी, हाँ। બધા ગ્રુપમાં ફોટો। वाह, क्या ભેગા बात જો, है। સતલાની સાહેબ ભેગા જો, પુરીનબા ભેગા જો, કાલજી સર થોડા ભેગા જો। बेगा जो बेगा जो। ये टूटी फूटी भाषा नहीं थी, ये शब्द टूटा हुआ भी साथ में कर लेते हैं। कहते हैं ना कि ऐसे गीत गाने वाले जब बहुत मरीज रहते, बहुत हॉस्पिटल में,
बहुत मदद के हिसाब से करते रहते हैं। भाई शब्दों के जादूगर तरीके जो जादू के शब्द वापरते हैं तो उसमें भी जान फूक जाती है और अपना तैयार हो जाता है। थैंक यू। शोभित भाई को याद दिला दूं, यहाँ पे शोभित भाई हमारे बीच गुजरात समाचार के अक्षय त्रिवेदी आए, अक्षर अंतानी आए थे और वो भी आपके जैसे, तो वो तो बहुत संगीत से मतलब संगीत के प्रेमी है और उन्होंने यहाँ भी वैसे ही बातें गीतों को गुनगुनाया था, मजा आया था। और हम अभी मैं सब स्टेज पे न्योता देता हूँ, आइए सब। स्टेज प्रोग्राम की शुरुआत करके बाद में हम जो राशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन और जो स्विमिंग मशीन ये सब देना है, लेकिन थोड़ी जो देसाई को न्योता देंगे। शोभित भाई ऊपर आइए। ब्रज भाई पटेल आइए। हमारे सीनियर सर प्लीज, आपको आधा घंटा 15 मिनट देना है बस, आइए। हीरालाल भाई मरूक, हीरालाल भाई कई कोठी में सर हमारे, और वो हीरालाल भाई और तन्ना साहब आ सकेंगे ऊपर। भगवती में रहिए जी, मुख्य बड़े हमारे ये दादा श्री भी है। लगता है कि यहाँ पे एक संगीत की महफिल हो जाएगी। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे दो शब्द हमारे जो सीनियर पीआई हैं जो बताएंगे। आज वापस थोड़ी याद दिला दूँ कि ये राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन का जो चौथे साल का पहला महीना यानी 37th मंथ 3 साल पूरा हुआ और उसके सर भी हमारे चश्मगीर गवाह है। तो वो भी हमारे साथ ही रहते हैं ऐसे प्रोग्राम में। तो चौथे साल की ये शुरुआत हो रही है। बस हम जलाराम बापा से, गणपति जी से, भगवान से प्रार्थना करें कि बस हमें थोड़ी सी शक्ति मिलती रहे और ऐसा ये अभी क्योंकि मालूम है कि सबको थोड़ा स्पीच ये सब होगा तो आते रहते हैं। पूरा 216 लोगों का लिस्ट है, तो 5-10% कमी होके 180-190 लोग तो यहाँ पर अभी पहुँच ही आएंगे। तो हम थोड़ा जो हम अपनी जो दिल की बातें हैं वो भी रखनी है। तो मैं इसके लिए बस ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, यही हमारी मूरी है आप आए इसके लिए। तो मैं नम्र निवेदन करूंगा श्री कोथिमेरे सर, सीनियर पीआई ऑफ मुलुंड पुलिस स्टेशन। नमस्कार, थोड़ा जोर से नमस्कार। वेरी गुड वेरी गुड। आप बहुत टाइम बैठे, आप बोर हो गए लगता है सर। हमारे लालजी भाई 4 बजे लाके बिठा थे आपको और हमको 6 बजे बुलाते। चलो अच्छी बात है। लास्ट 1.5 साल से मैं मुलुंड में है, सीनियर इंस्पेक्टर। हमारे लालजी भाई हमारे सामने पुलिस के बराबर सामने उनका है, क्लासेस है। उनका जो काम हम देखते हैं हमको भी बुरा लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। लेकिन जब भी मौका मिलता है इनके साथ हम आते हैं। कम से कम 5-6 बार आपको अटेंड किया लगता है। एक साल में 5-6 बार मैं एक प्रोग्राम अटेंड किया है। लास्ट टाइम में थोड़ा मिस हो गया, लालजी भाई ने बहुत फोन किए लेकिन मैं बाहर था थोड़ा। तो जब भी आपके साथ आता हूँ तो बहुत मजा आता है। देखो देने वाले बहुत है, लेने वाले भी बहुत है, लेकिन देने वाला हिम्मत वाला होना चाहिए, जो हमारे लालजी भाई है।
तो उसके लिए सब लोग दुआ करेंगे। उसके उम्र कम से कम 100 साल तो होनी चाहिए, क्योंकि सब आप जैसे लोगों को आपस मदद करें। और उनके साथ जो आज जुड़े हैं ये सब भाई लोग 110 साल जो ये तो हमेशा दान करते हैं। जब तक ये नहीं तब तक लालजी भाई भी नहीं, लालजी भाई नहीं तो हम भी नहीं। ये सब सर्कल है, ये चेन है, एक दूसरे को मिलने का, एक दूसरे को साथ देने का। आज ये लोग सब 50-60 के आगे हैं और ये लोग ने बहुत कुछ देखा है, अच्छे दिन देखे, बुरे दिन देखे। अब ये स्टेज में आदमी क्या देखता है कि जिसको जरूरत है उसको देना चाहिए। आज हम रोड पे खड़ा रहेंगे, बांटना चालू करेंगे तो अच्छे लोग भी लाइन में खड़े रहते हैं, तो उसको दान करके कुछ मतलब नहीं। दान जिसको देना चाहिए, जिसको सच में जरूरत है उसकी, और वो काम हमारे लालजी भाई करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। मैं किधर अपना स्वप्न नगरी में जाता हूँ अमावस्या के दिन, उधर पे हजारों लोग आते हैं, अपंग आते हैं, अंधे लोग आते हैं, हजारों आते हैं, 2-3 हजार लोग रहते हैं। तो उसके साथ जाता तो 1-2 घंटा ऐसा निकल जाता है, बहुत मजा आता है। हर आदमी का प्रॉब्लम, आज मैं भी तुम्हारे सामने इतना अट्टा कट्टा आदमी दिखता हूँ, लेकिन अंदर से खोखला हुआ कि मेरे भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, बीपी है, हर आदमी को प्रॉब्लम है। उसके ऊपर अपने को बात करना है। अभी आपका प्रॉब्लम दिखता है, हम लोग का प्रॉब्लम नहीं दिखता है, लेकिन हर इंसान को प्रॉब्लम है। तो ऐसे दोस्त लोग अगर जुड़े होंगे तो सब प्रॉब्लम के ऊपर दवा ही दवा आ जाएगी। आज के डेट में अच्छे लोग मिलना बहुत कम है। नहीं तो आज के लिए आज मैं जो काम कर रहा हूँ पूरा दिन, तुम्हारे जेब का पैसा मेरे जेब में कैसा आएगा वही दिमाग काम करता है आज के दिन लोगों का। इतने चीटर लोग भरे, तो उन लोग से अपने को संभाल के पहचानने का, उसको इन लोग से अपने दोस्ती नहीं करने का, उनके आजू बाजू में नहीं जाने का। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, 1-1 करोड़ की गाड़ी पे घूमते हैं, लेकिन तुम्हारे जेब में अगर 100 रुपए दिखा कि वो मेरे जेब में कैसा आएगा वही दिमाग काम करेगा उसका। तो क्या मतलब है उसका 100 करोड़ का गाड़ी का, था 1 करोड़ गाड़ी का। और ये लोग हैं हमारे जेब में 1 रुपए नहीं, लेकिन आपको देखने के बाद एक किधर से भी लाके तुमको देंगे। ये फर्क है, ये फर्क है इन लोगों में। आप लोगों ने बहुत देखा है। आप थोड़े मजबूर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ठीक है, जो भी है हिम्मत वाले आप लोग भी है। आप जो कर रहे हैं ना, अच्छे लोग नहीं कर सकते। आप हिम्मत से काम करते, हिम्मत से घर चलाते। आज हमारे बहुत सारे, मैं 15 अगस्त को इधर अंबाजी धाम के मंदिर के बाजू में झंडा वंदन के लिए जाता हूँ। सब मुखे बहरे अंधे लोग होते, तो जो 15 अगस्त का अपना स्वतंत्र दिन का गाना गाते हैं उनके भाषा में, चलो वो देख के ऐसा लगता है कि हम आंख होने के बाद भी नहीं कर सकते। ये चीज आप लोग से हमको सीखने को मिलता है। हर आदमी जब तक जिंदा है तब तक कुछ ना कुछ नया सीखता है। अरे से आपको एक बच्चा सिखाता है, कोई बूढ़ा सिखाता है, कोई जवान सिखाता है, कोई जानवर भी सिखाता है अपने ऊपर भी। खाली अपनी नजर होनी चाहिए, सीखने की नजर होनी चाहिए। आज के दिन में लालजी भाई ने जो इतना अच्छा, आज मुझे लगता है थोड़े कम लोग आ गए लालजी भाई, आज लिस्ट बनी है, शायद लोग कम दिख रहे हैं मुझे। हाँ ये भी बात है। इसके लिए आपको मैं पहले बोला, आप 4 बजे से बैठे, सॉरी बोला है। तो लोग टाइम पे आते तो अच्छी बात है, क्योंकि टाइम भी बहुत, बॉम्बे में टाइम बहुत बड़ी चीज है, सबके पास नहीं है। पूरा बॉम्बे घड़ी के ऊपर चलता है। आज मेरे पास भी टाइम नहीं, लेकिन इनका प्यार जब खिंच के लाता है कि 10-15 मिनट निकल के आना पड़ता है। तो आज सबका तो नाम नहीं मालूम, लेकिन जो जितने बैठे सब में आपके लिए देवता लोग हैं। इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसे लोग के साथ सहवास में आप रहेंगे तो आपको कुछ कम नहीं पड़ने वाला। और ये लोग भी दोनों हाथ से आपको देने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये मेरा दावा है। और मेरे लायक, मैं लालजी भाई को हमेशा बोलता हूँ, मेरे लायक जो भी सेवा है, मैं इतना तो नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ा बहुत मैं देता हूँ। कभी कभी लालजी भाई को 2-4-5 हजार रुपये भेजता रहता हूँ कि हमारे तरफ से थोड़ा गिफ्ट रखो। तो जब भी लालजी भाई को बोलता, आपको जिस दिन लगेगा मुझे याद करो। बहुत तो नहीं, लेकिन छोटा देने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा समाधान मिलता है। आज जो लालजी भाई ने रेशन रखा है, ये सब लोग आज इसको साथ में तुम्हारे साथ है। मैं थोड़ा बिजी है, तो मैं आपकी सबकी राय ले, आज्ञा लेके मैं निकलता हूँ। बाकी ये प्रोग्राम चालू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ये सब भाई लोग
बात करेंगे आपके साथ। तो अभी तो गाना भी गाने चालू कर दिया, ये तो महफिल बनेगी अभी, तो अंदर का वापस जवान दिल वापस बाहर आ जाएगा, 40 साल की जवानी। तो ये साहब जी जो इतना अच्छा गाना गाया, हमारे बहन जी ने भी जो गाना स्टार्ट किया वो साहब ने एंड कर दिया, बहुत अच्छा लगा वो भी। आज मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग के साथ और लालजी भाई के साथ आके बहुत अच्छा लगा। भगवान आपको सबको खुश रखे, लालजी भाई को उम्र दे, अरे प्रोग्राम हो 3 साल तो क्या आगे 30 साल चलना चाहे, ये दुआ करता हूँ। थैंक यू। इनमें से दो बातें जरा वापस जब तना साहब और आप सब इतना प्रेम जता रहे हैं तो 2 लाइन वही वो दोहराऊंगा पहले कि पत्थर को इतना मत पूजो, पत्थर को इतना मत पूजो। जब अब हमारे बीच में बड़े शायर बैठे हैं तो पत्थर को इतना मत पूजो, वो देवता हो जाएगा। मुझे इतना मत चाहो, मैं बेवफा हो जाऊंगा। और रही शायरी की बात, एक और शायरी इसलिए कि सर ने बताया कि सबके साथ कुछ न कुछ तो थोड़ी दिक्कतें रहती हैं। जैसे बुद्ध भगवान की जो स्टोरी है कि वो एक घर से वो कुछ अनाज लेके आए जिसमें घर में कोई कोई किसी का डेथ नहीं हुआ हो, वैसे अभी वो वार्ता को लिया जाए कि आप एक घर में से मुट्ठी अनाज लेके आइए जिसके घर में कोई भी दिक्कत नहीं है, एक घर भी नहीं मिलेगा। और उसके लिए शायर ने वापस कुछ कहा है कि होती तो हैं मुश्किलें हर आदमी के साथ, शोभित भाई, होती तो हैं मुश्किलें हर आदमी के साथ, तो फिर क्यों न जिए हम जिंदा दिली के साथ। तो फिर बस चलते रहना है। सर की बात, और एक बात मैं बता दूं कि डीसीपी सर तो तभी एक बार नहीं आ पाए, लेकिन जब एसीपी साहब आए थे तभी उनके सामने मैंने बताया था कि जो खाकी वर्दी की जो इमेज है कि बस कुछ न कुछ जेब पे नजर रहती है, वैसा कुछ के वो मतलब उस तरह से के थोड़ा इनकमिंग होता है, आउटगोइंग नहीं होता है। लेकिन यहाँ सर ने हमारे साथ ये प्रोग्राम के लिए बहुत बार ऐसा करके दिया है, यानी कि 2-3 बार कि भाई ये प्रोग्राम के लिए मेरे तरफ से ये छोटा सा ये योगदान है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये हमारा आपका सबका सम्मान है कि इतने बड़े पोस्ट पे रहने के बाद और हमारे लिए इतना सोचना, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। और जब बड़ी बड़ी बातें हो रही है तो बड़े आदमी भी हमारे बीच जुड़ रहे हैं। आइए बड़े साहब डॉक्टर मोहन अग्रवाल जी, आइए सर। ये जो आज का जो प्रोग्राम में जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, मानव किरण ज्योत के जो ट्रस्टी हैं डॉक्टर मोहन अग्रवाल, जोरदार तालियां हो जाए। आज जो मैंने बीच में बात छेड़ी कि मानसून से ये सब कुछ होगा, तो इन्होंने बताया व्हील चेयर भी चाहिए तो इनके ट्रस्ट के से मिल जाएगी, खाली हमें थोड़ी प्रोसीजर पूरी करनी है। तो वैसे और जो राशन किट में भी इनका योगदान रहता है। बहुत बड़े जो कहने के डोनर तो है, लेकिन उनकी जो सेवाएं चल रही है मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए, बहुत बड़ा काम हो रहा है उनकी ओर से। आपकी सेवा को वंदन करते हैं डॉक्टर मोहन अग्रवाल जी। अब सर को जाना है, इसके लिए मैं नीतल ऊपर जा, सी गॉट 83% जस्ट लास्ट एग्जाम, बहुत और सेवा भी कर रही है इतना। અહીંયા આપણે શોભિતભાઈને એમને કહેશું એમનું સાલનું અભિવાદન કરશે। હીરાલાલભાઈ સરનું અભિવાદન કરો। मेरा राइट हैंड है, मेरे साथ हमेशा रहती है। थोड़ा आज लेट हो गया, थोड़ा उसकी मीटिंग की वजह से। धन्यवाद। नीतल भी चाहिए अभी बेटा। अभी सम्मान की विधि पहले पूर्ण कर लेते, बाद में स्पीच, क्योंकि सर को जाना तो सर के हाथ से भी थोड़ा सम्मान हो जाए सबका। तो शोभित भाई देसाई का जो सम्मान करना है, हमारे यहाँ तो ओळखाण करी लीजिए, थोड़ी घड़ी लागड़ी नी लहाण करी लीजिए। तो ये 1 मिनट आप रखो इधर जरा, 1 मिनट रखो इधर जरा, क्योंकि सर भी सुने क्या बात है, हमारे बीच में कितनी बड़ी हस्ती आई है। 1 मिनट। तो ये जो शोभित भाई देसाई जिन्होंने 4000
जो जाहिर प्रोग्राम बोलते हैं, पब्लिक प्रोग्राम जो बोलते हैं स्टेज पे, इतना प्रोग्राम उन्होंने किया है। दिलीप कुमार हो, अपने हमारे जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और अमिताभ बच्चन, उनके साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया है सब प्रोग्रामों में। मोदी साहब के साथ भी अभी, हाँ, लेटेस्ट इसमें शायद मुंबई समाचार के प्रोग्राम में थे शायद, बरोबर है इसके लिए। हाँ हाँ। एक और जो उन्होंने हिंदी गुजराती जो ड्रामे भी लिखे हैं, और खाली लिखे नहीं हैं, बड़े बड़े पृथ्वी थिएटर जैसे उसमें भी ये ड्रामा मतलब प्ले भी किए गए हैं। तो वैसे ये शोभित भाई देसाई, जिसके एक नाम है अंदाजे बयां, ये बहुत बड़ा काम उसमें है। जो आपने शायद जो पोएट, हमारे जो बड़े पोएट हैं जो मरीज और शायर थे रमेश पारेख, उनकी जो पोएम है, उनकी जो रचना है, उनको जो कैसे समन्वय करके उन्होंने बहुत बड़े अच्छे प्रोग्राम दिए हैं। उनको जो अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड और इंटरनेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड में उनको प्रियदर्शनी अवार्ड मिला है 2002 में, और इंटरनेशनल लेवल पे जो अवार्ड मिला है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पोएट ऑफ 2011 फ्रॉम हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन यूके। तो यानी हमारी जो गुजराती भाषा का जो इस तरह से जो गौरव हुआ है और गौरव आपने दिलाया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और आज ऐसे बड़ी हस्ती हमारे बीच है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम हमारे जो मंचस्थ महानुभाव से कहूँगा, साथ में वरज भाई भी रहेंगे और सीनियर सर आप इनको देके, मैं भी जरा आगे आ जाता हूँ, उनको ये मोमेंटो देके उनका सम्मान करेंगे, साल पहनाएंगे। ભાઈ આવો ચિમનભાઈ બ્રાન્ડ મુંબઈ ગુજરાતી સમાજના શ્રી ચિમનભાઈ પટેલ, चिमनभाई मोता पधारो। वरजभाई पटेल, इनका वरजभाई का सम्मान हो जाए बस, वरजभाई पटेल का। हाँ, तो ये मैंने पहले बताया कि जो कैरियर गाइडेंस है, बच्चों को कौन सी लाइन लेनी चाहिए, 25 साल से जो जुड़े हुए हैं उनके पास पुस्तकालय है, उसमें से 5 लाख किताबें हैं वो जो रिलेटेड टू एजुकेशन। और ये IAS जो एकेडमी है, वो IAS एकेडमी के ये जो डायरेक्टर हैं, और जब सीनियर सर खड़े ना, सीनियर सर, एक वर्ड है, आज ही किसी ने शायद सुप्रीम ने ऑर्डर दिया है, या तो बात आई है कि ईडी से थोड़ा समाज में घबराहट मत फैलाइए। आज तो ये ईडी ऑफिसर को ये बनाते हैं, और एक ईडी ऑफिसर अंकित ठक्कर करके घाटकोपर का लड़का, सर ये हमारे समाज का लड़का आज ईडी ऑफिसर है, बेंगलोर में है, और ये उन्होंने उनके पूरे मार्गदर्शन से, गाइडेंस से आगे बढ़ा है। तो वैसे IAS ऑफिसर कैसे बना जाता है, सब पूरा गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस देते हैं। जन्मभूमि जो पेपर है उसमें हर मंडे को पूरा आर्टिकल आता है। हमारा जो लोहाना सौरभ है उसमें भी मार्गदर्शन मिलता है। अभी गुर्जर भूमि है उसमें भी उन्होंने ये कॉलम देना शुरू किया है। तो एक जो विद्यार्थी आलम के जो हम दीवादांडी बोलते हैं, यानी उनको जो भूले किधर दिशाहीन हो गए तो दिशा देने का काम कर रहे हैं, वैसे विज पटेल का यहाँ आज के प्रोग्राम में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सबसे बड़ा अवार्ड हम सबकी ओर से जिनको प्रेजेंट करना है वो लालजी सर को, इनका इतने सालों का परिश्रम और इतने सालों की जो इंसानियत है वो सब जमा करके हमने इस जो अपना ट्रॉफी है उसमें ये सन्निष्ठ करने का कोशिश की है। तो मैं हम सबकी ओर से, आप सबकी ओर से लालजी सर का सम्मान करता हूं। लेकिन उसके पहले मैं उसका मैसेज पढ़ना चाहता हूं कि ड्यूरिंग कोरोना एपिडेमिक
Shri Lalji sir, you have emerged out as genius corona warrior. Since then you started distributing free ration kits every month to nearly 200 needy people. Honorable Governor Shri also appreciated your such services. In this sequence, you have completed 3 years of this seva. On the occasion of beginning of 4th year, we feel proud by honoring you and expect that your such human services should last for longer and longer. हम सबकी ओर से हीरा भाई ये अपना ट्रॉफी है वो लालजी सर को और कोथिंबेरे साहब लालजी सर को ये दो महानुभाव ये अर्पण करेंगे। थैंक यू। यस, क्या बात। दो मिनट सुनिए सर, जरा 2 मिनट सुनिए ना। और कि ये जो प्रोग्राम है आज जो राशन किट दिख रही है थैली में, वो राशन किट जो हमारे हीरालाल भाई मृग जिनकी 50th जो मैरिज एनिवर्सरी है तो उसकी खुशी में दी जा रही है। लेकिन एक इसमें अलग बात ये है सर कि उन्होंने जो गोल्डन एनिवर्सरी की है तो ये 1 महीने के लिए 15 अप्रैल टू 15 मई 50 अच्छे काम उन्होंने चुने हैं, जिन्होंने वृद्धाश्रम के लिए 51,000 का डोनेशन दिया। ये जो अपना 51 कच्ची युवक संघ का जो ब्लड डोनेशन था उसमें भी उन्होंने 51,000 का डोनेशन दिया। जहाँ जहाँ खाने का प्रोग्राम चल रहा है, राम रोटी, राज रोटी, अपना हैप्पी फ्रिज, निमेश तना चैरिटेबल ट्रस्ट, यहाँ पे सब खाना दिया, भूदेवों को भी खाना खिलाया। आज ये स्विंग मशीन भी यहाँ से इनकी ओर से दिया जा रहा है। आज जो महाराणा प्रताप हमने जन्म जयंती मनाई अभी, तभी वो आते आते तो बीच में किसी एक ने बताया कि मुझे साइकिल की जरूरत है, उन्होंने इमीडिएटली साइकिल दी। वहां जहां प्रोग्राम चालू था तो जो एनबी सिंह थे उन्होंने बताया कि यहाँ लाइटिंग नहीं है महाराणा प्रताप की इधर, इमीडिएटली उन्होंने किया कि लाइटिंग होनी चाहिए। तो ये सब मतलब 50 कार्य चुने के हमारे जो 50 साल हुए हैं तो 50 साल में 50 अच्छे कार्य होने चाहिए। तो वैसी सोच को हम यहाँ से वंदन करते हैं हीरालाल भाई मृग की ऐसी जो मैरिज एनिवर्सरी है उसके लिए। समाज के प्रति जो आपकी जो भावना है उसको हम वंदन करते हैं और मोमेंटो अर्पण करते हैं गृहस्थाश्रम का। और इसका भी रीडिंग करने को आपको शोभित भाई को आपको पढ़ना पड़ेगा, गुजराती में है वो। खाली दोनों का फोटो नहीं है, जब भी शादी हुआ तभी का पहला फोटो और अभी का फोटो, दोनों फोटो साथ में है। यानी उनको याद आएगा चाय की चुस्की लगाते लगाते कि जब शादी की तब कैसे दिखते थे और अभी कैसे दिखते हैं। आपके हाथ से दीजिए। वही आदमी जो 50 साल पहले भी था, एक्चुअली 50 साल तो शादी के साथ किया और 32 बरस का था, 31-32 बरस का था तब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। और उसके बाद में 50 साल मेरे वाइफ के साथ मैंने गुजारे, जो आपकी हिदायत से आपको आज तक वही मेरा काम चालू है। आओ लग भाई। सर को धन्यवाद देते हैं कि इतना टाइम हमारे लिए निकाला। और जो यहाँ का जो वर्डिंग है वो हमारे कवि महोदय ही पढ़ के बताएंगे। शोभित भाई देसाई, जरा आप इसका पठन कीजिए। शादी के 50 वर्ष पूर्ण करके प्रसन्न दाम्पत्य जीवन का एक बहुत ही बेहतरीन आपने उदाहरण समाज के सामने रखा है। आपके ऊपर लक्ष्मी देवी की कृपा है। आप बिजनेस में बहुत आगे का नाम कर चुके हैं। अवार्ड किंग
कि इल्काब से आपको नवाजा गया है, आप समाज श्रेष्ठी भी है और आपने 50 साल की एक सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में 1 महीने तक हर रोज का एक अच्छा काम करने का जो निर्णय लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। ब्लड डोनेशन और वृद्धाश्रम के लिए आपने 51,000 रुपए का दान दिया है। शिव महापुराण कथा का आयोजन किया है और 51 भूदेव महिलाओं को भोजन दक्षिणा और अनाज की किट आपने बांटी है और लालजी सर के द्वारा संचालित आनंद क्लासेस की राशन वितरण की ये जो सेवा का 4था साल है, उसका पहले महीने में आपने लक्ष्मी के साथ नारायण को साथ में रख के धन्यो गृहस्थाश्रम की शुभेच्छा आपने अपनी ओर से सबको बांटी है। इसके लिए पूरा समाज आपका शुक्रगुजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसको बताया जाता है स्पॉन्टेनियस। ये जो है वो मैंने गुजराती में लिखा है, लेकिन शोभित साहब ने अपने को पूरा हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया है। यहाँ हमारे जो वेलविशर हैं संजय भाई, पूरे दिल से, तो संजय भाई तक आवाज पहुंचती होगी तो हमें विनती करेंगे 2 मिनट के लिए जो भी आएंगे तो अच्छा रहेगा। संजय भाई माली जो आ सके 2 मिनट खाली छोटा सा आए थे जरा, तो क्योंकि ये प्रोग्राम के लिए यहाँ से उनसे हाँ बराबर आते हैं तब तक। नहीं 5-7 મિનિટ નહીં, થોડુંક જેને કે કાવ્યનો પણ અમને કંઈક આસ્વાદ મળવો જોઈએ, જે પણ હોય તે મજા આવે અમને। આવો મોકો ક્યારે મળશે એમ? મૃગ સાહેબ આપ પણ બેસી જાઓ, બધા બેસી જાઓ। દીકરા તું પણ બેસી જા, ફર્સ્ટ ક્લાસ એન્જોય કર। હું જે કહેવા માંગુ છું તે તમે બધા પણ બેસી જાઓ અને બેઠા બેઠા મારા જેટલા ફોટા પાડવા હોય એટલો, મારી જેટલી ફિલ્મ ઉતારવી હોય એટલી ફિલ્મ પણ ઉતારો। પણ એટલા માટે कि हूँ कई बहुत महत्वपूर्ण, मैं कुछ बहुत ही ज्यादा अहम बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ये सब बात हमने बताई आपको। एक ही बात दोहराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है। अर्जी सर खास सांभळ्यो, हीरा भाई खास सांभळ्यो। मैं ये जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी व्रत भाई, कि उसका नाम था, बहुत ही फेमस फिल्म थी गाइड। मेरे हिसाब से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्म बनी नहीं है और बनेगी भी नहीं, क्योंकि वो विजय आनंद भी नहीं है, वो अपने साहिर साहब भी नहीं है, वो SD बर्मन भी नहीं है, वो वहीदा रहमान अभी रिटायर्ड हो गए हैं। बट इट वॉज आई थिंक सबसे अच्छी फिल्म मेरी जिंदगी की वो है। उसमें एक बहुत ही बढ़िया उसमें एक सीन है जिसमें वो फॉरेन की करस्पॉन्डेंट आके पूछती है, जो स्वामी जी है जिसका रोल देवानंद कर रहे हैं, वो पहले गाइड थे अब स्वामी जी हो गए हैं, और बारिश नहीं होती है उसके लिए वो अनशन पे उतर जाते हैं और उनका कुछ 5-6 दिन का अनशन हो गया है। और एक फॉरेन करस्पॉन्डेंट आके पूछती है उनको कि स्वामी जी क्या आप अनशन के बारे में मानते हैं, आप अनशन की ये जो प्रक्रिया है मानते हैं आप उसे? वो इंग्लिश में पूछती है कि स्वामी यू बिलीव इन फास्ट, यानी कि वो उसका जो ट्रांसलेटर है वो पूछता है कि ये महिला पूछती है कि स्वामी जी क्या आप उपवास में मानते हैं? तो देवानंद साहब जो कि स्वामी जी का रोल कर रहे हैं, ये विजय आनंद ने ये लिखा है और ये हम सबके लिए इतना बड़ा मैसेज है कि वो बोलते हैं कि आप उपवास में मानते हैं कि ये सब तूत को तो नहीं लगता है आपको कि ये उपवास में क्या सही में आप मानते हैं? तो विजय आनंद साहब के ये अल्फाज है, सिर्फ इतना ही देवानंद साहब बोलते हैं कि 40 करोड़ आदमी, 40 करोड़ इंसान अगर एक दिन का खाना छोड़ दे तो दूसरे 40 करोड़ भूखे प्यासे इंसान एक दिन का खाना खा सके। मेरे हिसाब से ये त्याग की भावना होनी चाहिए। ये लेवल का सेक्रीफाइस का अपने अंदर बीज बोना चाहिए हर एक इंसान को, क्योंकि मैं बोलता हूं कि बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस हो रहे हैं आज दुनिया में, बहुत बड़ी बड़ी 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर लंबे जो पुल बन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुल व्रत भाई, सबसे बड़ा पुल एक इंसान
दूसरे इंसान के दिल तक जो बनाता है ना, उससे बड़ा पुल मैंने आज तक मेरी जिंदगी में कोई देखा है। ये पुल हमको बनाना है, और ये पुल आज ये अपना हीरा भाई है, लालजी भाई है, ये जो इंस्पेक्टर आए वो, ये हमारे 12 साल तक कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, वो ये सब मिलके ये पुल बनाने की कोशिश करते हैं। और आप सब अपने आप को ओपन रख के ये पुल का दूसरा छोर आप अपने हृदय में प्रस्थापित करने के लिए आप जो तैयार बैठे हैं, मैं आज आप सबको इसके लिए वंदन करता हूं कि आप सब ये जो किट है उसका स्वीकार करके हम पर मेहरबानी कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। सो आई एम ऑल, बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और बाकी को मेरी जो गुजराती की 2 पंक्तियां हैं वो मैं गुजराती में कहूंगा, लेकिन उसमें मेरी जो टूटी फूटी जो हिंदी है उसमें ट्रांसलेट करने की भी कोशिश करूंगा कि जिससे मैं आपको मतलब पहुंचा सकूं, उसका अर्थ पहुंचा सकूं। तो ये जो काम हो रहा है, और ऐसा काम इतने बड़े पैमाने पे हो कि आज ये आप हम लोग जो ये जगह में बैठे हैं, जिस जगह की बैठने की कैपेसिटी शायद 150 के 200 तक है, ऐसा महान इसका काम चले, ये काम वो पैमाने पर पहुंचे कि मेरे सामने मैं 1200-1500 की यहाँ पे ऑडियंस देखूं, और आप सब और हम सब एक साथ में जुड़ के, एक साथ में मिल के इंसानियत का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण दुनिया के सामने रखें, ये मेरी ख्वाहिश है। तो मैं जो 2 शेर की बात कर रहा हूं वो ये है कि सदा शू योग्यताओं मांगनी मापता रहूं। कोई हमारे पास अगर 500 रुपया अगर मेरे पास मांगने को आता है ना, तो मैं उसकी जो तकलीफ है वो महसूस करने के बजाय मैं तुरंत देखता हूं कि यार इसने जूते तो सही पहने हैं, इसने अपने हाथों में घड़ी भी पहनी है, उसके पास फोन भी है, तो ये 500 रुपया क्यों मांगता है? यानी कि मैं उसकी लायकात, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને લાયકાત, એને માપવાનું શરૂ કરી દઈએ છીએ। કોઈ 500 रुपया જેવી વસ્તુ માંગે तो આપણે એની લાયકાત માપવાનું શરૂ કરી દઈએ। जो हम इंसान थोड़े कम हो जाते हैं जब हम उसकी जो लायकात है वो नापने की कोशिश करते हैं ना, हम थोड़े कम इंसान हो जाते हैं। क्योंकि हमें जब ऊपर वाले ने इतने बड़े पैमाने पे दिया जो हम डिजर्व नहीं करते थे, तब ऊपर वाले ने ये नहीं सोचा था कि ये लायकात इसकी है कि नहीं, ये लायक है कि नहीं लेने के लिए। उसने बिना कुछ देखे समझे सोचे हमें इतना दे दिया। लेकिन हमको अगर 500 रुपए की भी देने की बारी आती है तो हम उसका ये कितना एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी उसकी मेजर करते हैं। तो मैं कहता हूं कि सदा शू योग्यताओ मांगनी मापता रहવું છે, तारो धर्म केवल एटलो के आपता रहવું। तुम्हारा सिर्फ यही धर्म है कि देते रहने का। आप उसकी एलिजिबिलिटी मत नापा कीजिए, आप देते रहिए जहां तक दे सकते हैं। उसके बारे में कुछ इंक्वायरी मत कीजिए, उसके हाल हवाल की तरफ आपका नजरिया मत घुमाइए, आप बस देते जाइए अगर दे सकते हैं तो। सदा शू योग्यताओ मांगनी मापता रहવું છે, तारो धर्म केवल एटलो के आपता रहવું અને અસૂરજ લોકનો અંધારપટ ઉલેચવો કાયમ। यानी कि जहां पे सूरज का उजाला नहीं है उस सब जगहों का अंधेरा इंसान को जरूर दूर करना ही चाहिए। जहां पे सूरज का उजाला नहीं है, अंधेरा छाया हुआ है, वो अंधेरा जरूर दूर करना ही चाहिए। सदा शू योग्यताओ मांगनी मापता रहવું છે, तारो धर्म केवल एटलो के आपता रहવું असुरज लोकनो अंधारपट उलेचવો कायम અને તકતી મુકાવાની हो ત્યારે लापता रहવું। आप अंधेरा दूर करते रहिए, लेकिन अगर वहां पे जहां से आपने अंधेरा दूर किया है वहां पे अगर आपके नाम की तख्ती लगानी हो, कोई आके बोले कि आपका नाम क्या है, हमें आपके नाम की तख्ती लगानी, तब वहां से भाग जाने का। इसे कहते हैं दान देने का सही तरीका। हम सब में ऐसी दान देने की भावना दिन ब दिन और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा हो, ऐसी प्रभु प्रार्थना के साथ मैं शोभित देसाई, लालजी सर की, रूप साहब की और आप सबकी विदाई लेता हूं, क्योंकि मुझे इस भरे हुए ट्रैफिक में यहां से खार तक जाना है। तो थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू एंड मे आई सी यू एवरी ईयर मोर एंड मोर प्रॉस्पेरस। ब्लेस यू। थैंक यू।
जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो जाए। मतलब दूर से खास से ये वेस्टर्न साइड से स्पेशल हमारे लिए। नीचे नहीं अभी सब कुछ रास्ता है। पगथिया उतरता બે લાઈન સાંભળતા જાઓ। આવો અગર ના આવો જેવી તમારી મરજી, જો કે સદાય આવો એવી અમારી અરજી। બસ આવી રીતે આવતા રહેજો એમ। ઓકે।